are and how they are different from analog, and what are the possibilities and what are the disadvantage, what are the advantage, all these things. और कुछ डिजिटल आपने पढ़ भी लिया है. अब कहाँ तक पहुंच गया डिजिटल में? फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं अभी. अच्छा, फ्लिप फ्लॉप शुरू हो गया. रेस अराउंड कंडीशंस को रिमूव करने का. Yes. Race around, yes, there is a race around. The racing to get to high value. वाला. Yes sir. Spikes वाला. रेस अराउंड कंडीशन को हम अवॉइड तो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं रेस अराउंड कंडीशन यूजफुल भी हो जाता है. चलो हम स्टार्ट करते हैं. लेट मी see what I have shared. I have shared the topic. So we have 3 lectures for digital instrument. Their working principle is basically what we have to discuss is the working principle. And some comparison between analog and digital instrument, and some characteristic of a digital meter. Means what are the important character, at what point, what are the different point you focus on a digital instrument. For example, जैसे आप मोबाइल परचेज करते हो तो आप किस किस पॉइंट पे फोकस करते हो? स्क्रीन साइज होता है, रैम होता है, फिर आपका मेमोरी होता है. तो सम इम्पोर्टेंट जिसको हम गोल्डन पैरामीटर्स कहते हैं, तो उस पैरामीटर को डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर डिजिटल मीटर्स. एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वेट, व्हिच इज अ मल्टीमीटर, व्हिच इज नथिंग बट इट इज द सेम व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर. यही वाला हमारा यहाँ पे होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं. डिजिटल मल्टीमीटर विल हैव several other things it can do the same, several other things, current, voltage, capacitance, and for transistor parameter, diode parameter, all these things it can do. Then we have the time interval and frequency and period measurement using universal counter. तो काउंटर भी आप करोगे, फ्लिप फ्लॉप एक बार खत्म कर लोगे तो फिर आप काउंटर करोगे, फिर उसके बाद रजिस्टर करोगे. तो काउंटर का यहाँ पे यूज होगा. एंड टाइम बेस्ड स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन फॉर योर फ्रीक्वेंसी. तो दोनों 3 लेक्चर हैं, यानी नवंबर में दिस विल बी फिनिश्ड. हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो लेट अस गो कम टू द कंपैरिजन. तो क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिजिटल एंड एनालॉग. तो दोनों में एक कंपैरिजन आप लिख सकते हो. सो द फर्स्ट वन, लेट मी show the pen also. Okay. So the first one is the detection of low level signal, which is very important. Analog में possibility थोड़ी सी कम होती है. We can see that PMMC, permanent magnet moving coil movement, draws a current of 50 milliampere. You can go up to some 1 milliampere also, but you cannot go below that. So that is very difficult to make a instrument with a very high precision of current value. High precision means very small value. So in digital we can do that. That is a possibility, because digital system also obviously deals with a very small current. कुछ हमारे पास जो अभी तो खैर जो आप पढ़ते हो, जितना आपकी बुक्स में लिखा हुआ है वो सारा आपका ट्रांजिस्टर और डायोड पे बेस्ड होता है, जिसमें जो करंट लिमिट होती है वो मिली और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो में फ्लो होता है. Maybe 500 micro, 0.5 milli. But now the more improved system has been there, जिनको हम normally MOSFET कहते हैं. MOSFET मैंने शायद कभी आपको फुल फॉर्म बताया भी होगा क्लास में, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं. But metal oxide semiconductor field effect transistor. So that is used. So that is also a transistor, but it has a certain design changes. जो आपका PNP, NPN देखते हो उससे थोड़ा सा modified होता है. Normally it is something like you have a door, और डोर में से आप करंट पास कर रहे हो. उस डोर को आप how much opening you can give to that door, that is decided by another thing. तो एक हमारे पास गेट कंट्रोल होता है. तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मीनिंग ये है कि the transistor will work as a transistor and its parameter is getting affected by the applied field. तो थोड़ा सा different है, मतलब maybe I can show you some basic diagram. That is something like this one. This is a bar and you have a PN. For if this is P, then this area is N. Okay, this area is N, and you apply the electric field at this point.
एंड यू हैव अ करंट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से करंट पास हो रहा है आपका। इस करंट को हमें कंट्रोल करना है, जिसको हम आईडी कहते हैं, नॉर्मली ड्रेन करंट कहते हैं, और इस विड्थ को वी कैन मैनेज यूजिंग दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको हम गेट वोल्टेज कहते हैं। तो ये तो एक बहुत बेसिक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। हमारे पूरे सर्कुलर सेंस में सिलिंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास जंक्शन बना होता है, जंक्शन की विड्थ को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यू वेरी वेल नो। रिवर्स बैच में अगर आप जंक्शन करोगे तो विड्थ आपका डिक्रीज इंक्रीज होता है, बट इंक्रीज होकर के बाहर तो नहीं जाएगा, इट विल पेनिट्रेट विद इन द सिस्टम, तो करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस दैट विल डिक्रीज, तो यू कैन मैनेज दैट, सो दैट इज वेरी वेल मैनेज्ड। और मोबिलिटी भी अच्छी होती है इन सारे इंस्ट्रूमेंट की। मोबिलिटी मीन्स विथ व्हाट अमाउंट ऑफ फील्ड योर मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द, और यू डिवाइड दैट बाय द फील्ड, तो कितने फील्ड पे कितनी वेलोसिटी आप अचीव कर पाते हो, दैट इज समथिंग लाइक मोबिलिटी इज समथिंग लाइक हाउ फ्री यू कैन मूव इन द सिस्टम। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू द डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल। High input impedance. Conventional, this voltmeter is rugged and is accurate instrument, but suffer a certain disadvantage. The principal problem is the lack of both high sensitivity and high input resistance. You cannot put that. अगर आप नॉर्मल, हमारे पास पहले भी मैंने बोला कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसकी इम्पिडेंस बहुत हाई हो, फॉर एग्जांपल op amp can be used for most of the instrument. तो op amp की कैपेबिलिटी क्या है, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दिस इज टचिंग टू इंफिनिटी, वेरी हाई, मेगा ओम्स, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम होता है, और जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू रफली जीरो। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट की एक जो पहचान है, मीन्स व्हाट इज द बेस्ट point that we can have instrument should have a very high input impedance and very low output impedance. Means it should be capable of drawing most of the power from previous instrument, and it should able to give all the power to the next instrument, so something like that. So that property is very important. So in digital we can have that property, but in analog, if you do that, so if you try to increase the resistance, then your sensitivity will decrease. Obvious, the current through the coil will decrease. So that is a big problem. So here it is of no something like that is not the case in this instrument. The current is somewhere else, and you don't have a needle to move that. So that is why it is better. So we can have a high input impedance, because we can use this kind of device, and that will have a very high, even इससे भी high होगा MOSFET में और बिल्कुल insulator हो जाता है वो, but still the current can flow. Then low consumption, obviously. अभी आपने डिजिटल की लैब में पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग ऑन 0 and 1 वोल्ट या 5 वोल्ट, ये दो वैल्यू पे वर्क करते हैं, मे बी, है ना, 5 या 0 वोल्ट, या समटाइम 1 वोल्ट भी चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो लेके चलते हैं 5 और 0 को हम लेवल मानते हैं, मीन 0 is 0 and 5 is 1. तो लेवल हमारे पास दो ही लेवल है डिजिटल में, तो 5 वोल्ट इज अ गुड वैल्यू. And if you go in the terms of current, then current is around milliampere. So if the diode is having a milliampere current, then diode is on. If diode is having less than milliampere current, then the diode is off. तो एक ऑन ऑफ का जो सेंस है वो हमारे पास मिली एम्पियर और 5 वोल्ट के सेंस में है, ठीक है, बट ये सारा का सारा बुक का नॉलेज है. जो प्रैक्टिकल डिवाइस आज के टाइम हो गया, इवन इफ यू सी द चिप, आपकी जो कंप्यूटर में चिप लगी होती है उसको मुझे नहीं लगता 5 या 6 वोल्ट से ज्यादा चाहिए होता है, and it has millions, tens millions of devices in that particular chip. तो 1 by 1 इंच के चिप में मिलियंस ऑफ कंपोनेंट लगे हुए हैं, मींस मिलियंस ऑफ कंपोनेंट मींस इधर रेजिस्टेंस होगा या कैपेसिटेंस जैसा कुछ एक्ट हो रहा होगा, या कोई डायोड बना होगा, या कोई ट्रांजिस्टर बना होगा, या मॉसफेट बना होगा. इट विल हैव दोस काइंड ऑफ कंपोनेंट, and all those component is getting power from only 5 volt. Current will not be more than hardly a milliampere. तो उतने सारे इंस्ट्रूमेंट को हम, उतने सारे डिवाइसेस को हम सिर्फ पावर कितना हो गया आपका 5 into 1, दैट इज मिलीवॉट, है ना. 5 into 1 कितना हो गया 1 milliampere और 5 वोल्ट, सो दैट इज मिलीवॉट. तो 5 मिलीवॉट में आपका सारा काम हो रहा है. बट नाउ द थिंग्स आर गोइंग फर्दर डाउन. आज के टाइम में जो लेवल को डिफाइन किया जाता है ना, 0 लेवल इज 0 लॉजिक एंड 0.2 0.3 is 1 logic.
इमेजिन द डिफरेंस, वेरी लो, 1 भी नहीं जा रहा है, 1 वोल्ट भी नहीं, 0.2 वोल्ट पे उसको अज्यूम हो रहा है कि दैट इज लॉजिक 1 एंड 0 वोल्ट पे दैट इज लॉजिक 0. सो डिफरेंस इज वेरी लेस, difference is very less. So consumption or power consumption will be very low. तो ये एक आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज है when you use a digital instrument. एनालॉग में केस नहीं, एनालॉग में आपको मिली एम्पियर से ज्यादा करंट देना ही देना पड़ेगा if you want to move the needle, so it will consume more power. Then you have high frequency range, that is also possible. आप कितनी भी high frequency, you can see some of the capacitance that is order of picofarad. So जितना आप frequency यहाँ पे, जितना आप इस order को increase करोगे उतना आप, क्योंकि आपका जो डायोड होता है, डायोड का इंटरनल जो कैपेसिटेंस होता है वो पिकोफैरेड में होता है, 10 of picofarad or 50 of picofarad. Why the diode is behaving as a capacitance? Because you can easily see डायोड जब आप उसको रिवर्स बायस कनेक्ट करते हो तो स्पेस चार्ज आपके एक बाउंड्री पे जनरेट हो जाते हैं एंड दे स्पेस चार्ज बिहेव और मिमिक as a parallel plate capacitor. So you can easily find what is the applied voltage and you can easily find what is the capacity of this particular diode. तो जब भी आप डायोड यूज करते हो ना तो उसका एक इंटरनल कैपेसिटेंस होता है. डायोड तो डायोड की तरह वर्क कर रहा है, बट देयर इज अ placement of charges and those charges are behaving as a parallel plate capacitor. तो उसका width भी है, उसका number of charges भी है per unit area, so you can easily find the this capacitance. तो हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर मे बी आप पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता था पेपर, उसमें ये सारी कैलकुलेशन होती थी कैपेसिटेंस ऑफ डायोड निकालने का, बट अब शायद है नहीं. सो दैट इज सम ऑफ दोस थिंग्स हैज बीन रिमूव, वो उसको डीएसी में डाल दिया है, तो डीएसी बच्चे ऑप्ट ही नहीं करते हैं या हम देते भी नहीं है, तो दैट इज आउट ऑफ द फैशन हो गया आज के टाइम में. बेटर रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली बेटर रेजोल्यूशन आपका आपने, अच्छा डीएसी और एडीसी अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैंने जो दूसरी लैब है ना A+B, उसमें मैंने उनको डीएसी करवाया, बट अभी सिर्फ सर्किट बनाया उन्होंने, उसका वर्किंग अभी ठीक से नहीं समझा है, और थोड़ा सा व्हाट इज रेजोल्यूशन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी दैट दे हैव नॉट डन एनीथिंग. तो एक सिर्फ अभी सर्किट उन्होंने डिजाइन किया, बट इन डिजिटल you can have a better resolution. और resolution बढ़ाने का सिर्फ डिजिटल में एक ही तरीका है, you increase the number of bits. So as you go on increasing the number of bits, your resolution is going to increase. Means how small value you can measure or you can detect. So that can increase by increasing the number of bits. Current से कोई मतलब नहीं है, current आप ज्यादा रखो कम रखो उससे कोई मतलब नहीं, you just increase the bits. तो एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे 0 to 5 वोल्ट है, and if I use 12 bits, then I can measure this much of voltage. If I use further more bits, then I can go further more. So that is a possibility. So resolution we can improve by improving the number of bits. Then the best thing is storage. एनालॉग आपको पिक्चर लेके ही आप स्टोर कर सकते हो. आपको मैं अगर बोलूं कि भाई आप एनालॉग मीटर है उसमें मेजरमेंट करो और आप उससे स्टोर कर लो, तो स्टोर कैसे करोगे? यू कैन टेक अ पिक्चर, यू कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर रीडिंग, या तो आप टेबल बना लोगे, टेबल को कॉपी में लिखोगे, कॉपी एक स्टोरेज फॉर्म में आपका पर सेव हो गया. ये कल को अगर उसी रीडिंग को मुझे देखना है तो आई विल सी द टेबल, बट आई कैन नॉट सी द रीडिंग डायरेक्टली. तो रीडिंग अगर डायरेक्टली देखना है तो टेबल के साथ मैंने क्या लगा दिया, जितनी रीडिंग ली थी उसका मैंने पिक लिया, पिक के एक फोटोग्राफ वहां पे लगा दिया, but obviously the photograph will destroy after certain time. तो storage facility आपके पास एनालॉग में नहीं है, you don't have that kind of thing, but in digital you have the storage facility. तो आपके पास memories हैं और memory understand only the digital things and it can store the things. So that is a facility which you get in a digital instrument. Accuracy is also a good point, or accuracy increases because if you go on increasing the resolution, so how small difference you can measure, so you can be more accurate what you are measuring. So that is also related to some kind of, but not directly, but there is some relation between these two things. The accuracy is also good, but not every time everything is good. कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी चीज बनाते हैं, बट उस अच्छी चीज में सब कुछ अच्छा जरूरी नहीं कि है, कुछ गलत भी होता है, कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ खराब भी होता है.
So some disadvantages also there, and we cannot avoid those disadvantage in the digital instrument. So these are the disadvantage. Effect of noise is more predominant on a digital instrument because you go on decreasing the sensing value or resolution. आपने क्या किया, डिक्रीज करते रहो, डिक्रीज करते रहो, आप छोटे से छोटी वैल्यू को मेजर करना चाहते हो, you have to just add the bits, you have to add the circuit actually. But what will happen, you have noise. Noise is unwanted signals, unwanted thermal noise, or that will produce some kind of DC voltage in your instrument. So if that DC voltage is comparable to your measured value or smallest resolution which you have kept, if it is comparable to that, so state can change. आपने जिसको 0 assume किया था, हो सकता है वो नॉइस के कारण वो 1 लॉजिक का हो गया, तो आपका नंबर चेंज हो सकता है, तो आप नॉइस को अवॉइड नहीं कर पाते हो डिजिटल में. मींस एनालॉग में यू डोंट गो दैट मच लो वैल्यू, सो नॉइस इज ऑलवेज अवॉइडेड. नॉइस का वहां कोई रोल नहीं रहता है, आपकी रीडिंग जितनी आ रही है वो रीडिंग ही आ रही है, सो देयर इज नो सच काइंड ऑफ नॉइस इज देयर. बट इन दिस यू ऑलवेज हैव द नॉइस, क्योंकि आपने रेजोल्यूशन डिक्रीज किया, आपने बिट्स इंक्रीज किया, आप 0.1 पहले तो आपने सोचा कि मिली एम्पियर नहीं, अब मुझे और बेटर करना है, माइक्रो एम्पियर भी मुझे मेजर करना है, ओके, देन फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो एम्पियर मेजर करना है, एंड नॉइस इज कंपेरेबल टू माइक्रो एंड फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो एम्पियर. सो you cannot avoid this, so that is there, it is always there. Then analog instrument have higher overload capacity than digital instrument, obviously. आप यहाँ पे पावर ही बहुत कम दे रहे हो, आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही लो पावर को यूज कर रहा है और वर्क कर रहा है. तो सडनली इफ यू पुट वेरी हाई लोडिंग, means very low resistance to the digital instrument, then it can show certain error. So that is not the case of analog. Analog में क्या है, it is a it can sustain a high, or you can sustain a overload का meaning क्या है, it can sustain a higher current also, but not very high current, but at least it can sustain a good amount of high current. That is a plus point for a analog instrument, but it is not possible in a digital. और आपका डिजिटल में क्या होता है, अगर एग्जांपल के लिए कोई एक आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रखा, इंटीग्रेशन मींस व्हिच यू कॉल्ड सर्किट इंटीग्रेशन, आपने अलग अलग कंपोनेंट यूज किया, तो कोई कंपोनेंट खराब हो गया, यू कैन रिमूव दैट, आपने उसको रिमूव किया और उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट लगा दिया. कोई रेजिस्टेंस खराब हो गया, उसको रिमूव किया, दूसरा लगा दिया. कोई आईसी खराब हो गई, उसको निकाल दिया, दूसरा कर दिया. बट अगर इंटीग्रेशन आपने कर दिया है और सोचा कि सारा का सारा चिप, फॉर एग्जांपल मेरा अगर कंप्यूटर में जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर अगर कोई एक पार्ट भी खराब हो गया, तो आई हैव टू रिप्लेस द सीपीयू, आई कैन नॉट रिपेयर दैट. बट एनालॉग में ऐसा नहीं, मेरा कॉइल खराब हो गया, आई कैन रिपेयर द कॉइल, नीडल खराब हो गया, आई कैन रिपेयर द नीडल, वायर खराब हो गया, आई कैन रिपेयर द वायर. So every part is repairable. Some part there maybe some fused form could be there, उसको आप repair नहीं कर पाते, लेकिन you can repair that by part in analog instrument. But in digital, if you have a single chip, if everything is worked by that particular chip, or somehow you pass a good amount of current और वो गड़बड़ हो जाए, तो फिर उसके बाद तो आपको पूरा चिप ही चेंज करना पड़ेगा, even though rest of the 90% chip is good. But अगर उसका 10% भी खराब हो गया, 1% भी खराब हो गया, you cannot do the things with that. तो ये आपने में भी देखा होगा, अगर आप, अच्छा आपने तो प्रैक्टिकल नहीं किया, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये चीज की कम गड़बड़ में दिखती है. अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जब नैंड गेट की आईसी यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि नैंड गेट में नैंड गेट की जो आईसी है उसमें 4 नैंड गेट्स होते हैं. ये तो शायद पढ़ा होगा, 7400 आईसी यूज होता है, दे हैव 4 नैंड गेट्स एंड 14 पिन का वो आईसी होता है. 7th पिन और 14th पिन, 7th आपका ग्राउंड होता है, 14 आपका वीसीसी होता है, और 1 2 और 3rd is output, then 3 4 3rd is output, then 4 5 and 6 is output, and similarly 8 9 and 10 is out, something like that. अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि OR गेट बनाओ या XOR गेट बनाओ. अब OR गेट तो चलो सिंपल है, XOR में आपको 5 NAND गेट चाहिए होते हैं मिनिमम. आपने ये भी सर्किट बनाया होगा, या 4 से भी काम चल जाता है.
शायद 4 से भी बन जाता है, 4 का भी एक ऑप्शन होता है। बट नॉर्मली अगर बच्चे मतलब और गेट एक्सक्लूसिव और गेट में क्या है, एक और गेट है आपका, 2 एंड गेट है, फिर नॉट गेट है, तो बच्चे क्या करते हैं इंडिविजुअली गेट्स को अपने नैंड से कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ नैंड तो कैंसिल हो जाते हैं, बट दे कैन कम अप विद 5, जो नॉर्मल सर्किट बच्चे बनाते हैं 5 नैंड गेट को यूज करके बनाते हैं, बट 4 से भी बन जाता है, जिसमें आप इनिशियल जो नैंड गेट है ना उसमें 2 इनपुट दो, उसी का इनपुट का आप दोनों में आउटपुट दो और इनपुट्स भी दो, मतलब इट इज कीप इट इन ब्रिज काइंड ऑफ फॉर्म, और इजिली वो डिजाइन हो जाता है। तो एक आईसी से तो आपका जोर गेट बन गया, लेकिन बाई चांस उस आईसी में एक नैंड गेट खराब है, तो यू नीड मोर आईसी। भी 4 ही तो है, तो अब फोर्थ नैंड गेट कहाँ से आएगा? फोर्थ नैंड के लिए पूरे एक आईसी आपको यूज करनी पड़ती है, पूरे आईसी को आप पावर देते हो, उसमें से फिर एक गेट आप यूज करते हो, तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपका चिप के अंदर कोई एक पार्ट खराब हो गया तो या तो आप चिप रिप्लेस करो, या तो आप और चिप दूसरा यूज करो, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कि भाई एक के बाद दूसरे चिप को अटैच करो, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। बट हाँ, कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए इस प्रॉब्लम को उतना कोई देखता नहीं है, बिकॉज नैंड गेट की आईसी कितने 15 रुपए में आ जाती है, बट एक कॉइल अगर बनाओगे एनालॉग मीटर का तो दैट विल कॉस्ट यू 100, 200। आपको वायर चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, और कॉपर वायर भी काफी लेंथ का चाहिए होगा, मे बी 100 मीटर, अगर आपको नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखने हैं, तो obviously the costing is very low, so that is why you can easily do the things, but that is a problem. Then the digital instrument can sometimes lose its reliability and tends to indicate erratic value. ये रीजन वही है जो आपका फर्स्ट रीजन है। कई बार क्या होता है, अब एनालॉग सिग्नल आपका होता है, फिर उसको डिजिटाइज करते हो, उसको स्टोर करते हो, स्टोर करके उसको प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करके फिर उसे आप मे बी कोई डिस्प्ले यूनिट है तो वहां पे आप उसको सेंड करते हो। अगर डिस्प्ले यूनिट आपका डिजिटल है देन इट्स ओके, अगर डिजिटल आपका जो डिस्प्ले यूनिट है वो एनालॉग है, देन अगेन यू हैव टू कन्वर्ट योर डिजिटल इनटू एनालॉग एंड देन यू कैन डू द डिस्प्ले। तो बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है। एनालॉग में क्या है, आपने करंट दिया, नीडल ने मूव किया और आपको रीडिंग शो कर है, लेकिन डिजिटल में ऐसा नहीं है, आपने करंट दिया, दैट वाज एनालॉग करंट, you have digitized it according to your whatever the resolution you have designed, then you have stored it, and then you again it is converted into analog, and then again it is displayed on the internet. So there are several steps during this transformation. It can lose certain bits, तो हम वो भी लगाते हैं, पैरिटी चेकर भी लगा देते हैं कि इनिशियली कितने बिट एंटर हुए थे, फाइनली मुझे कितने बिट्स मिल रहे हैं, कितने 1 हैं, कितने जीरोस हैं, तो वी ऑल डू दोस थिंग्स, वो चेकिंग तो करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ सम टाइम व्हेन यू आर डूइंग द ट्रांसफर, 1 कैन बिकम 0 एंड 0 कैन बिकम 1, और सडनली अगर कोई 0 1 1 0 चेंज हो जाता है तो आपको पूरा नंबर ही चेंज हो जाता है, तो यू कैन लूज दोज थिंग्स। तो रिलायबिलिटी कई बार प्रॉब्लम होती है कि वो सेम इनपुट के लिए सेम रीडिंग कई बार नहीं शो करता, इट कैन डिफ्लेक्ट, इट कैन शो सम अदर वैल्यू, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज यू आर जस्ट कंपेयरिंग। अब तो इतनी लो वैल्यू पे आ गया है कि यू नीड अ वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, 0 and 0.2 volt, 0.2 volt is your 1, 0 is your 0, so this is very small value, मतलब 200 मिली पे हम चले गए, और इन फ्यूचर हो सकता है हम 1 माइक्रो वोल्ट को वी विल से एज अ 1 लॉजिक एंड 0 वी विल से एज अ 0 लॉजिक, बट हो सकता है ये भी अब खत्म हो जाए इफ क्वांटम कंप्यूटिंग कम्स इनटू द लाइक अ डेस्कटॉप। तो अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाता है तो आपके पास ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। You know what is the benefit of quantum computing? How much things it can do? Anyone has any means motivation to go for this kind of research in quantum? अब तो डेस्कटॉप बनने को तैयार हो रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स, मतलब मेरे ख्याल से अगले 5 साल में शायद डेस्कटॉप विल बी देयर एंड यू कैन परचेज दैट। तो क्या उसका क्या बेनिफिट क्या है, कोई बेनिफिट है? क्वांटम कंप्यूटिंग ना काफी तेजी हर से चीज करता वो होगा। कैलकुलेशंस करता है। क्या करता है कैलकुलेशन? यस सर, लाइक क्या करता है लॉजिक मतलब क्यों? लॉजिक ओके, हाउ लाइक वो मेनी हर एक चीज मींस, करता है बेसिकली, इंटरफेरेंस और ये सब वगैरह सब कुछ एक बारी में कर देगा, ऑप्शन दे देके अच्छा, पर कंप्यूटर तो टाइप। इफ आई गिव एग्जांपल,
if I give you example, for example, any mathematical problem is there, and you need, let us say, 1 month to do the calculation. Means your supercomputer will take 1 month. It is go on doing the looping. For example, very highest prime number आपको निकालना है, तो अगर वही मुझे चेक करना है, या मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया, वो प्राइम है या नहीं है उसको चेक करना है, या मुझे हाईएस्ट प्राइम वैल्यू को निकालना है, तो कंप्यूटर हैज टू डू सेवरल लूपिंग, मिलियंस ऑफ लूपिंग इट हैज टू डू. वो एक पे एक के बाद एक चेक करता जाएगा. मान लेते हैं 1 मंथ में वो काम हो रहा है. किसी एक नॉर्मल अभी जो डिजिटल बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, इट टेक अराउंड 1 मंथ टू डू द कैलकुलेशन. देन हाउ मच अ क्वांटम कंप्यूटर विल टेक? 1 day. 1 महीने का काम आपका. मेरे ख्याल से इसको भी और कैलकुलेट मतलब दे हैव प्रेडिक्टेड कि इट विल बी डन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. सो मुझे लग रहा है कि उसमें एरर ज्यादा होगा जितना तो बेनिफिट नहीं होगा उतना एरर होगा. मींस इट विल नॉट शो एनी लैग एट ऑल. इट विल डू जस्ट इन अ पता नहीं उसके वर्क तो एक्चुअली स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा है वो. अभी तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे वर्क कर रहे हैं. जो हमारा सारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे है, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. But when you convert to this quantum, it is working on the spin, and every electron has a spin, and all those spin means there is a vast amount of possibility. Means you can imagine, just imagine, you need 1 ampere of current. 1 ampere में कितने आपके electrons होंगे? To make one as a logic one, आपको 1 milliampere किसी particular area और किसी particular time में आपको किसी cross section से pass करना होता है. Then it is called 1 milliampere. तो हाउ मच चार्ज यू आर रिक्वायर्ड इफ यू आर टॉकिंग कि चलो 1 सेकंड में वो क्रॉस कर रहा है, और अगर वो पिको सेकंड में होता तो थोड़ा सा आपका चार्ज का नंबर डिक्रीज कर सकते हो. अगर आप 1 सेकंड में करते हो तो चार्ज आपको ज्यादा रखना पड़ेगा. करंट का मीनिंग तो यही है Q upon T. If you decrease the T value, then you can decrease the Q value also. तो Q आपको थोड़ा सा कम हो जाता है, but you can do the calculation. You require at least 10 to the 20 or 10 to the 16, 10 to the 12 kind of number of electrons you are required. And if each of the electron is capable of doing its own calculation, if you are treating the spin of the electron, अब चार्ज को जो भूल जाओ, स्पिन से काम करो. तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन है, and they can do the interference, they can do the things, and they can predict the result in a very short time. But शायद ऐसा भी है कि वो बहुत सारे रिजल्ट शो करेगा, and you have to judge which one is correct, because it can give you several options. जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, all the probability is there, but when you do the measurement, then you find yes, this is the best probability. तो theoretically आप calculate करोगे तो सब कुछ आपके पास possible है, but ultimately when you do the experiment, then you see कि ये wave function मेरा collapse हो रहा है, और ये wave function इस पे collapse हो रहा है, तो मेरा इसका मतलब कि मेरा radius जो आ रहा है ये इतना आ रहा है. तो when you do the calculation, you can see the things कि experimentally correct हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. But predictions is very vast. Prediction is innumerous, you can say. So that is why, and people are trying कि 5 साल के अंदर आपके डेस्कटॉप जैसा क्वांटम कंप्यूटर फॉर्म हो जाए. So that will be costly. हमारे इंडिया में आते आते तो बहुत टाइम लगेगा. इंडिया में अगले 15 साल भी नहीं आने वाला. पता नहीं, अगर मोदी जी ने कहीं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो तो मे बी he can do that. Then a fourth point, digital instrument and their internal electronics component are very much sensitive to the external atmosphere, and their parameter can change. In high humidity, corrosive atmosphere, the internal parts may get damaged, and that is an obvious thing. Okay, now we come to the basic. What are the characteristics of a digital instrument? Means when you're purchasing it, what the things you have to remember. ये चीजें मुझे देखनी है अपने इंस्ट्रूमेंट की, ये कितना अच्छा है इसका. जिसका ज्यादा होगा वो हम परचेज करेंगे. So this is what is a characteristic of a digital meter. So resolution, we have discussed that. Resolution is actually, this is the formula. So 1 upon कई बार -1 नहीं भी होता है. If it is very big number, then you can neglect this also. So it is just 1 upon 2 to the power of, I will just write that. This is the smallest value you can do that. -1 तो इसलिए क्योंकि अगर ये 2, 3 है तो it is feasible, but if it is 10, then this number is hardly a value. So
this is a percentage resolution, but this is the smallest increment that you can do. जिन बच्चों ने DAC बनाया है A plus B ग्रुप ने, तो A plus B ग्रुप ने देखा होगा अब कि जो सबसे पहला रीडिंग है, यानी जब हम 000 4 बिट का उन्होंने बनाया है, मेरे ख्याल से आगे होगा भी. Let me just show you this is the DAC. So this is a 3-bit DAC, which is converting your digital input into an analog input, analog output. तो आपने क्या दिया है, यहाँ से सिग्नल दिया है, ये तीनों पॉइंट आपके सिग्नल पॉइंट है. तो you can give 0 0 0, you can give 0, sorry 1, this is highest value. You can give 0, you can give, for this I have written 3 zeros ना, तो मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ. This is 0 and this is 1, this is this will be 0 and this will be 1. यही होगा नंबर. पहला तो ये होगा, दूसरे केस में 1 यहाँ पे आ जाना चाहिए था, मतलब ये मुझे एक और 1 लिखना चाहिए यहाँ पे. तो यू कैन से कि काउंटिंग जैसे चलती है ना, 0 0 0, तीनों 0 है, फिर 0 0 1 and then you have 0 1 1. So we are doing a counting of 0 0 0 0 0 1 and 0 1. You can say 1 0, मैंने 1 1 लिख दिया. So whatever, this is 1, this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3 and so on. When you supply these bits to these 3 inputs and you get a single value of analog output. So when you supply this arrangement and what you are getting, this is called a resolution. जब आप सबसे स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, यानी डिजिटल काउंटिंग में आपका जो सबसे पहला नंबर होता है, 0 0 तो 0 वोल्ट ही देगा, बट जब LSB, दिस इज द LSB, तो LSB को जब 1 करते हो, बाकी सारे आपके 0 होते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट दैट यू आर डूइंग इन योर, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन रेजोल्यूशन. फॉर एग्जांपल, जो बच्चों ने बनाया था वो 0 and 5 वोल्ट, यानी आपका जो लॉजिक है 0 वोल्ट हम 0 कह रहे हैं, 0 वोल्ट को, और 5 वोल्ट को हम 1 कह रहे हैं. तो हम जब भी हम कह रहे हैं कि 0 0 0 दे रहा हूँ, तो हम 0 0 वोल्ट लगा रहे हैं. जब मैं 0 1 1 0 कह रहा हूँ, तो मैं 0 1 जहां कह रहा हूँ वहां पे मुझे 5 वोल्ट लगाना है. दिस इज व्हाट वोल्टेज वी हैव गिवन एट दीज पॉइंट्स. सो 1 upon means this, if I talk about कि रेजोल्यूशन क्या है मेरे इंस्ट्रूमेंट का, वो बिट डिसाइड करेगा. आपने कितने बिट, 3 बिट्स का रखा है, तो 3 बिट्स का मीनिंग क्या है, 2 to the power of 3. तो कितना हो गया नंबर, that is 8. तो you're dividing this 5 volt into 8 equal parts. You can divide this 5 volt if you increase the bit, you're 16 parts. You can further increase the bits, you can divide into further more. So you're dividing this is the only voltage which is available to you. आपने 5 volt ही रखना है, 10 तो बहुत कम रखते हैं हम, 0 डिजिटल में हम 0.5 रखते हैं या 1 वोल्ट भी कई बार रखते हैं. तो आप जब बिट्स इंक्रीज करते हो, तो आपके पास वोल्टेज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है. आपको रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए वोल्टेज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बिट्स इंक्रीज करनी है. मींस एक और सर्किट मुझे यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस अटैच कर देना, और ये वाला पार्ट मेरा ग्राउंडिंग यहाँ शिफ्ट कर देना, यहाँ से ये भी 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा. अभी हम सर्किट को डिस्कस करेंगे डिटेल में. So as I go on increasing the bits, it will divide into that much number of parts. Our formula simple है, 1 upon 2 to the power of number of bits. So that is 8, then 16, then 32, then 64, then 128, 256, 512, 1024, 2046, 48, and so on. So in digital, it is very much likely कि आप resolution increase कर सकते हो without increasing your voltage. This is a possibility. तो आपके पास रेजोल्यूशन आपके नंबर ऑफ बिट से डिसाइड होता है. तो जब भी इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे तो आप बोलोगे कि भाई कितने बिट पे वर्क कर रहा है. एक 32 बिट का कंप्यूटर, एक 64 बिट का कंप्यूटर, एक 128 बिट का कंप्यूटर. और यू कैन इमेजिन द डिफरेंस. 32 बिट आज के टाइम में आउटडेट हो चुका है, हार्डली यू हैव अ 32 बिट, यू हैव अ 64 बिट कंप्यूटर्स. और जो बैंक और जो सिक्योरिटी में यूज होते हैं, 128 बिट पे अब चलता था, अब वो 256 पे शिफ्ट हो गए. तो मे बी इन 2 years यू विल बी यूजिंग अ 128 बिट कंप्यूटर. तो 64 बिट से थोड़ा और इम्प्रूव करके आपका 128 बिट वाले पे आप चले आओगे, क्योंकि बैंक वाले सारे शिफ्ट हो गए, या तो 256 पे शिफ्ट हो गए या 512 पे शिफ्ट हो गए, बिकॉज दे नीड मोर सिक्योरिटी. तो जितना ज्यादा आपका बिट होगा, यू कैन हैव मोर रैंडम ऑप्शंस and you can put more security coding on that. So that is why they are increasing the bits. But increasing the bits में problem ये है कि आपको पूरा ज्योमेट्री ही चेंज करना पड़ता है, पूरा सर्किट चेंज करना पड़ता है, आपको बसेस की लाइन चेंज करनी पड़ेगी, मेमोरी का डिजाइन चेंज, बहुत सारे चीजें चेंज करनी पड़ेगी. इट इज नॉट इजी टू शिफ्ट
when you change the bit of your processing unit. तो processing unit का bit change करने का तो आपको motherboard भी change करना है, memory भी change करना, सब कुछ change करना पड़ेगा. तो normally we are in the 64-bit kind of thing. तो इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में हम और बिट के डिमांड कर सकते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर कॉस्टली बिकॉज इट इज डूइंग अ बेटर मेजरमेंट. देन यू हैव एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी क्या है? हाउ व्हेन यू डू द कन्वर्जन, हाउ क्लोज टू योर थ्योरेटिकल वैल्यू, जो आपने थ्योरेटिकल वैल्यू प्रेडिक्ट की है, तो आपका कितना क्लोज है. आप कह रहे हो कि मैं 0.1 मिली वोल्ट को मेजर कर पा रहा हूँ और आपका आंसर 0.09 आ रहा है. So there is a accuracy lag, थोड़ा सा difference है. Means आपको 0.1 चाहिए था मिली, आपको आ रहा है 0.9. So there is some difference. So that is the accuracy. So each instrument will have its accuracy. That will depend upon the electronics which you have used in that instrument. So that is also a very important parameter कि किस order तक resolved है या किस order तक मुझे accurate value देगा. कोई माइक्रो तक दे देता है, कोई नैनो तक देता है, कोई पिको तक भी देता है. So that will depend. Okay, now the linear error, because basic component that you are using in the digital instrument, they are semiconductor and they are non-linear devices. Their behavior is non-linear. Agree? इस पे agree करते हो या नहीं करते हो? They don't follow Ohm's law. है या नहीं है? So they don't follow Ohm's law. If they don't follow Ohm's law, it means you can work in a very small range. आप छोटे से रेंज में ही काम करते हो जहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, जहां पे आपकी लीनियरिटी फॉलो हो रही है. If I make a simple diode characteristic, it is not a straight line. It is something like this. So what do? You just restrict yourself to a very small part of this curve. आप उस कर्व से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहोगे. You don't want to go further more from those values. So what you will do, whatever the voltage variation you will allow, that will be allowed within this delta V range, so that you get this delta I current, and that will be following the Ohm's law. ये straight line होगा. Even आप नीचे पार्ट पे भी काम कर सकते हो, उसका भी छोटा सा पार्ट लो, that will be straight. तो आप कहीं पे भी फॉलो करो, बट यू हैव टू फॉलो कि आपका वोल्टेज वेरिएशन बहुत, लिनियरिटी को आपको मूव नहीं करना, बिकॉज आपके जितने भी कन्वर्जन है ना बीच में लगे हुए, डीएसी है, एडीसी है, या कोई आपका मल्टीप्लेक्सर है, या डीमल्टीप्लेक्सर है, या कोई भी कन्वर्टर लगा हुआ है, एनकोडर है, डिकोडर है, व्हाटएवर इज देयर, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिनियरिटी. आप इसको कन्वर्ट करो इस ऑर्डर में, कहीं पे स्क्वायर का फंक्शन नहीं आता है, कहीं पे क्यूबिक फंक्शन नहीं आता कन्वर्जन. तो दिस इज जस्ट यस, दिस इज द नंबर, I have to get this number. This is the number, I have to get this number. So this is what you have to maintain कि आपका voltage variation ऐसा नहीं होना चाहिए कि linearity वो move करे. Monotonicity, that is something which is related to digital to analog converter. कितना monotonic है? Monotonic means it is doing means one of the value is giving you one kind of analog. Means one set of input value is giving you one kind of analog value. तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपका कितना कन्वर्जन बेटर है. देयर इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द above which is third one, which is we have discussed about the linear error. It does not take any reverse step when it is sequence over the entire range of input bit. क्या लिखा? convert if it does not take any reverse step when it is sequenced over the entire range of input. तो सारे inputs को आप देख लो. अब कल जो एक बच्चे ने मुझे शेयर किया था उसका टेबल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, द नंबर्स आर अप एंड डाउन. पहले वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज. सो दैट शुड नॉट बी देयर. इफ योर बिट्स आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, योर एनालॉग वोल्टेज शुड आल्सो इंक्रीज इन द ऑर्डर. So there should be a single function. Then there is a settling time. Settling time थोड़ा सा आपने मे बी दूसरे सेंस में पढ़ा होगा. प्रीसेट टाइम और होल्ड टाइम और सेटअप टाइम, डिले टाइम, थोड़ा सा सुना है ये वर्ड जब फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ रहे हो तो. मे बी आई डोंट नो, बट ये टाइम आए थे आप प्रीसेट वाला तो अभी करवाना है पूरा, मतलब उसके बाद से नहीं. प्रीसेट पे को छोड़ देते हैं. सिर्फ फ्लिप फ्लॉप पे एक होता है होल्ड टाइम, डिले टाइम और सेटअप टाइम. वो करवाया है थोड़ा. वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस इफ यू सप्लाई इनपुट, it input takes certain time to go in the output.
फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा होगा फीडबैक लगता है, आपके जो आउटपुट है, आउटपुट को सेट होने में इट टेक अराउंड 2 to 3 और समटाइम 4 फीडबैक। तो आपका क्योंकि क्या होता है, आउटपुट की लाइन आपके इनपुट पे कनेक्टेड होती है ना फ्लिप फ्लॉप में, तो जितने भी आपके मेमोरी डिवाइस सर आपकी वॉइस लो है। हाँ सर आप पीछे चले गए माइक से। अच्छा, एक सेकेंड। अभी ठीक है? नाउ इज इट ओके? यस सर। Yes. Okay. So when you supply an input to a flip-flop, it does not instantaneously give the output. What happens? पहले एक आउटपुट आएगा जो आपने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग, फिर वो इनपुट जो आउटपुट है वो फिर इनपुट पे फीडबैक होगा, it will go back to the input and then it will again change the output of second part. Then it is this output is again going to the input for the first gate, and then again it means the feedback line is there, and after 2-3 feedback then your value is stable. ठीक है, तो ये तो एक केस हुआ कि जब हम मेमोरी या जब भी हम फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर या मेमोरी में वर्क करते हैं या काउंटर में वर्क करते हैं, देयर इज अ सर्टेन टाइम, उस टाइम को हमें ध्यान रखना होता है कि नैनो सेकेंड्स में होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, नैनो या टेंस ऑफ नैनो सेकेंड के आसपास होगा। तो वी हैव टू रिमेम्बर कि भाई इससे छोटे स्केल पे मुझे इनपुट चेंज नहीं करना है। अगर मान लो मेरा सेटअप टाइम, डिले टाइम और होल्ड टाइम सबको मिला करके मेरा 10 नैनो सेकेंड है, means I have to keep the voltage at the input for this much of time, then only my output will be a reliable output. So when you give a signal to those instrument, you have to remember कि 10 नैनोसेकेंड है तो मुझे 10 नैनोसेकेंड से पहले तो चेंज करना ही नहीं है इनपुट। अगर मैंने चेंज कर दिया तो output is not according to your input. So you have to remember this. So sometime the instrument have these kind of parameter, इसको improve करने की कोशिश भी की जाती है, but we cannot do to a certain limit. But nanosecond is good amount of value when you're dealing with a very high frequency or very high number of calculation within very small amount of time. इसलिए अभी तक हमारे पास जो स्पीड है ना, हम मेगा हर्ट्स या 2-3 मेगा हर्ट्स गीगा हर्ट्स से ज्यादा नहीं गए। गीगा इज समथिंग व्हिच इज 10.9, तो उसी का रिवर्स ऑर्डर देख लो तो 2-3 गीगा हर्ट्स के आसपास की आपकी स्पीड होती है और वो आपके नैनो सेकेंड के आसपास का डिले होता है, तो उससे बड़ी ही आपको टाइम रखनी होती है। देन ओनली योर इनपुट सिग्नल कैन गो इन अ बेटर वे एट द आउटपुट। बट दिस इज व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग, दैट व्हेन यू हैव अ इनिशियल वैल्यू, अब लॉजिक तो हमारा 0 और 1 हो सकता है या 0 and 1 वोल्ट हो सकता है, 0 to 5 वोल्ट हो सकता है। तो whenever this change is occurring from low to high level or high to low level, when it is changing, it does not change instantaneously. This is never happened, and this I have explained several time. आपने एग्जांपल भी किया होगा जब डिले टाइम और एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कौन सा था एक्सपेरिमेंट, सेट राइज टाइम, फॉल टाइम एंड डिले टाइम, तो हैव मेजर्ड दैट। तो देयर इज ऑलवेज अ राइज टाइम, तो वहां पे तो हमारे पास सिर्फ एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इट टेक्स सर्टेन टाइम टू चार्ज और गेट टू सर्टेन टाइम टू डिस्चार्ज। बट हियर आल्सो व्हेन यू स्विच द वोल्टेज, सडनली 0 था और सडनली 1 हो गया, तो इट टेक्स सर्टेन टाइम टू स्टेबलाइज विद इन दिस रेंज। जो आपने रेंज डिसाइड किया तो फाइनल वैल्यू उस रेंज का एवरेज वैल्यू है, सो इट विल सडनली जंप अप down, so there is some kind of damping is there and it will take certain time to stabilize its value. तो 5 वोल्ट को 5 वोल्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप क्लॉक का दोगे ना किसी इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके पास जब सिग्नल आपने, तो क्लॉक में तो सिग्नल चेंज हो गया, 0 से 5 हो गया, बट इंस्ट्रूमेंट ने अभी उसको सेटल होने में टाइम लगा। इंस्ट्रूमेंट के लिए वो सिग्नल अभी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, डिक्रीज हुआ, इंप्रूव हुआ, डिक्रीज हुआ, एंड देन इट गोज ऑन डूइंग अ डैम्पिंग एंड इट इज स्टेबल. So there is a certain time which is called as settling time, and this is very important when you are doing the DA converter. तो DA converter में ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो हमने जो DA converter देखा है सिर्फ सर्किट देखा है, अभी हम देखेंगे 2 या 3 डिफरेंट टाइप ऑफ DA converter हैं, and why they are different means sometime we do simultaneous conversion, sometime we do after certain time we do the conversion, so there are several things. तो 3 होते हैं, तीनों तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम शायद जो हमारे लिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है वो शायद साइमल्टेनियस कन्वर्जन एक यूज होता है और एक होता है कंटिन्यूअस कन्वर्जन, तो ये हम दोनों यूज करेंगे।
ठीक है. So there is a settling time. You will draw this curve, and obviously it is concerned with the your circuit which is being converting your digital to analog. तो suddenly आप change करोगे तो थोड़ा सा time आपको रुकना पड़ेगा, so that your output is getting in a better way. Then you have a temperature sensitivity. Obviously किसी भी IC पे भी लिखा होता है, तो there is always a temperature sensitivity that IC will work with perfectly within this temperature range. Why they are so important? Because in resistance, when the temperature is changing to say 100 degree, there is not a big effect on the resistance. But when you're doing a semiconductor, you know the minority charge carrier, and they are very sensitive to the temperature. तो अगर उनका नंबर आप इंक्रीज कर देते हो तो आपकी डिवाइस की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी. आपने डोपिंग करके एक अज्यूम किया कि मैंने डोपिंग की है और ये मेरा फॉरवर्ड बायस का करंट होगा, ये मेरा रिवर्स बायस का करंट होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो रिवर्स बायस का करंट भी इंक्रीज हो गया, बिकॉज रिवर्स बायस में क्या है, आपका सारा का सारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्ले करता है. तो इफ दैट इज आल्सो फीजिबल नंबर, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस, नॉर्मली सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. Why the resistance decreases? Because you get more number of carriers. तो आपके charge carrier increase हो जाते हैं, तो it lose the property of semiconducting property, you can say, that is being lost, and it is very sensitive. All the instruments are very sensitive to these kind of temperature. Means obviously यहाँ पे मैंने चीजें उस तरीके से नहीं लिखी हैं, but the basic rule है वो वही है कि they have certain temperature involvement in these. तो आपको थोड़ा सा ठंडा रखना होता है, इसलिए हमेशा आपको देखोगे कि जो आपका वो होता है चिप होती है, उसके ऊपर एक फैन भी लगा होता है जिसको सीपीयू फैन कहते हैं. और अगर आपका गेमिंग कंप्यूटर है, तो अगर किसी के पास गेमिंग कंप्यूटर होगा तो यू विल हैव अराउंड 4 or 5 कैबिनेट फैन, तो 4 होंगे, और एक आपका सीपीयू का फैन होगा, तो 4 या 5 फैन लगे होते हैं पूरे छोटे से बॉक्स में. इफ यू यूजिंग अ गेमिंग कंप्यूटर है किसी के पास, तो उसमें बहुत सारे फैन होंगे. पावर सप्लाई के तो फैन अपना होता है, फिर आपका फैन होता है, उसको सीपीयू के ऊपर ही फैन लगा होता है, उसके बीच में एक छोटी सी व्हाइट कलर की कुछ पेस्ट लगी होती है. दैट पेस्ट इज सिलिकॉन जेल होता है, व्हिच इज अ हीट, मींस इट इज वेरी गुड हीट कैपेसिटी वैल्यू. तो नीचे से हीट लेता है, वो फैन से वो रिमूव करता है. फिर उसका जो आपका कैबिनेट है, कैबिनेट में भी 3-4 फैन लगे होते हैं टू मेक देम आउटलेट्स. आपका गेम अच्छा चले, गेम में आप जब गन चला रहे हो तो गन स्टॉप ना हो जाए तो इसके लिए सारे फैन लगे होते हैं, सो दैट यू आर इन अ बेटर पैरामीटर, सीपीयू डज नॉट शो एनी लैग. नहीं तो क्या होता है, कंप्यूटर गर्म होगा, आपके गन नहीं चलेंगे, गन नहीं चलेंगे तो आपका जो दूसरा बैटलफील्ड में दूसरा है वो आपको गन मार देगा, क्योंकि दूसरे कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, किसी और इंटरनेट के थ्रू सिस्टम पे बैठा हुआ है. तो हो सकता है उसका ठीक हो, वो आपको हिट कर देगा. So that is why these things are very important. Okay, now we come to the digital to analog converter. That was just a simple real life example which I have given you. Okay, so पता नहीं A plus B में भी शायद करवाएंगे मैम, बट सॉरी C plus D में, A plus B में हमने कर लिया है, और बच्चों ने अभी रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, मतलब एक ही बच्चे ने किया है, but that is having certain issues. So this is a circuit. This is a very simple circuit. शायद डेरिवेशन इसका हम यहाँ नहीं करेंगे, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको, एक डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो नहीं, सिर्फ फर्स्ट जो ये V/2 कैसे आ रहा है, दैट आई विल शो यू. It is a very simple way. The formula for this converter, what the voltage you will get is equal to this one, and these are all are V because you give similar voltage to all the point. Obviously, zero जो आपने logic decide किया उसके according आप voltage देते हो. This is the voltage. यहाँ पे V1 या V2 मैंने नहीं लिख रहा है, but you can always write that this number is this particular, say the first value. So I will write it here. So VA is equal to V/2 है, और V/2 कौन सा है, ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 to the power of 2 वाले का है, यानी MSB का. So this is the MSB value. Then you have plus, means next value will be, just hold on.
So this let me write the another value, which is so next voltage is same value, but it is of which value? 2 to the power of 1 divided by 4, and then last one is V 2 to the power of 0 and divided by 8. And if you have more, then you can go on increasing this you can say series. So why this first value is this one? If I put 1, means if I put one logic, that means I am putting 5 volt at this point. तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 5 volt लगा दिया. बाकी सारे नंबर मेरे 0 हैं. ठीक है? तो जितने भी मेरे आगे बिट्स लगे all are 0. So I am talking about, if this is the diagram, if this is a 3-bit system, so I am talking about this value. And what is the analog value if my logic is 0 and 5 volt? इसी को मैं यूज कर रहा हूँ. तो ये वैल्यू जब मैं इनपुट पे डालूंगा, यानी ये नंबर मेरा 4 है. ये नंबर क्या है? 4 है ना. 1 1 होता तो 3 होता, 3 के बाद ये 4 है. तो you can say this is the number 4, but level is 5th one. आपका लेवल अगर 0 0 को एक लेवल मानते हो तो सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ एंड फिफ्थ. This is the 5th level, or you can say this number is 4 in a decimal equivalent. So how much voltage you are going to get? So you can minimize the circuit. Just look at these two. This is grounded. ये 0 लगा रखा है तो grounded है. ये भी grounded है. यानी all these two legs are connected, and their other part is also connected, and they both are 2R. तो 2R 2R पैरेलल में हो गए, तो 2R 2R पैरेलल में क्या देगा? 2 2R हैं दोनों पैरेलल में, तो क्या वैल्यू आएगी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस R आएगी. और वो R जो होगा वो सीरीज में इस R के साथ आ जाएगा, तो अगेन 2R हो जाएगा. फिर से मुझे 2R और 2R आ गया, फिर से मेरा R आ जाएगा, फिर वही इस R के साथ सीरीज में आ जाएगा तो 2R हो जाएगा. तो फिर से मैं जब यहाँ चेक करूंगा तो अगेन इट इज, बट मैं अब दोबारा नहीं उसे पैरेलल सेंस में करूंगा. तो अब मैं इस पूरे पार्ट को, यानी ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, सबको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर दिया, तो दिस टोटल विल बिकम अ सिंगल R in series with this one. So when I look at this circuit, now what I will see, there is 2R and there is a 2R. This is 2R and I am measuring the value at some, दो है ना, 2R ये रहा, एक R ये रहा, एक पूरा सर्किट सिंप्लीफाई होके R आ गया, तो this is 2R. तो 2R 2R के दो आपके पास पॉइंट लगे हुए हैं, और ये आपका 5 वोल्ट है, and this is grounded because जिसके आगे का पार्ट ग्राउंडेड है. तो this is how much, simply दो पार्ट में आपने डिवाइड कर देना 5 वोल्ट को, this will be 2.5 वोल्ट, है ना. तो क्या आ गया? V/2 आ गया. अब उसके बाद जो दूसरी कैलकुलेशन होती है उसके हम क्या करते हैं, ये 0 है, ये 0 है और ये 1 है. ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है कैलकुलेशन, and it's not so easy. And if this is 0 and this is 0 and this is 1, this becomes further more difficult, and you will get these numbers: V/2, V/4, V/8, V/16 and so on. So the calculation is very simple. आपको एक बार कैलकुलेशन करने के लिए सीखना है कि कैसे करते हैं. अगर ये इस एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, किसी और में पूछ सकते हैं, मे बी इन एनालॉग जब पढ़ोगे तो उसमें पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं पूछेंगे. बट इट इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द सीरीज पैरेलल कनेक्शन, दैट्स ऑल, एंड यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट. तो सबसे सिंपल वाला हमने बता दिया, हार्ड वाले दोनों छोड़ दिए आपके लिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू ऑन योर ओन. आपको कुछ नहीं करना है, सर्किट को इमेजिन करना है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे ग्राउंड करना है, और जहाँ पे हाई है वहाँ पे वोल्टेज लगाना है, एंड देन यू जस्ट लुक एट द सर्किट एंड make it in a series parallel combination. You will see the result. Everything will be something like this one. So this is your a simple DAC. This is a simple resistive. This is called as a R2R ladder या R2R network कह देते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है 3-bit binary ladder, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा, अगर हम आउटपुट प्लॉट करें तो दिस इज योर डिजिटल इनपुट. सो दैट इज 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे हम लिखते हैं, and 1 0 1 and so on. So finally we'll get 1 1 1. So this number is you are getting 0. This is the analog voltage output which you are getting 0. For this you get suddenly a number which is at this point, then you get this number, then you get this number, but you don't plot in this way because
why we don't make it a straight line? Because we are staying from 0 to this number, we are staying to 0 output only. Then suddenly my state shift to this value. Then I go like this. So this is the output. So this is something like a ladder. इसका नेम यहाँ से आता है कि इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम लैडर कहते हैं और ये सारे यूनिफॉर्म स्टेप्स हैं. दिस स्टेप इज एक्चुअली रेजोल्यूशन. तो ये वैल्यू आपका रेजोल्यूशन है, यानी दिस स्टेप इज नथिंग बट 1/2 n. n is the number of bits you have used. उतने ही स्टेप में इंक्रीज होता जाएगा. So that is why it is called a ladder, but it is a R2R network. Okay, so this is the output which I have already given to you. These are the numbers you will get, and this is the output. So these are the numbers. ये point आ रहा है ना, ये point आपके output है, ये मैंने mark कर रखा है. This is the resolution, and if you multiply with 100, so this is a very bad, you can say. अगर 100 से multiply करते हैं क्योंकि 5 volt है ना, तो ये तो मैंने वोल्टेज है, ये मैंने वोल्टेज लिखा है, दिस इज वोल्टेज. बट इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ resolution only, so this will be 2 to the power of 8 because you have 3 bits, sorry 3 bits, so it will be 2 to the power of 8. So 1/8 कितना होगा? ये 3 है, sorry, I will just write it 2 to the power 3. 1/8 कितना होगा? This number is 1/8. 1/8 क्या होगा? Can you calculate? 0.125. So Yes. the percentage resolution is 12%. तो 12% ही resolve कर पा रहा है ये, but we need a better resolution, means 1% or something like that. तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि how many bits are required to make a resolution of say less than 1%. So how many bits you will required if you want to make a resolution less than 1%? यानी जो smallest value है वो 1% से कम होनी चाहिए. आपकी जो भी 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट का 1% कितना हो गया? दैट इज 0.05. तो 0.05 आपका आउटपुट आना चाहिए. यहाँ पे मेरा 0.5 आ रहा है रफली, तो दैट इज नॉट अ गुड रेजोल्यूशन. कैन यू कैलकुलेट हाउ मच बिट्स यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ resolution less than 1%? How many bits will be required? तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ. मैंने लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने. मैं पढ़ा देता हूँ, फिर बाद में मुझे दिखता है कि यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है. मुझे सिर्फ यहाँ से लाइन पढ़नी है. ओके, दिस इज व्हाट आवर एम इज. कितना है यहाँ? कितने बिट्स चाहिए? 10 चाहिए, 12 चाहिए, 9 चाहिए, कितने चाहिए? जिसमें आपका नंबर 1 से मतलब यू हैव टू जस्ट डू द डिवीजन. 1/16 करके देखो कितना नंबर है, 1 से छोटा आना चाहिए. 1/32 करो, 1 बाय, जस्ट गो ऑन डूइंग. क्या होगा नहीं पता चला? 5 बिट्स का है ना? 5 में आ जाएगा? 5 में शायद नहीं आया क्योंकि 1/32 हो जाएगा मे बी, मुझे ध्यान नहीं. This is a very small resolution. I mean, 1% is also very bad. We need further more fractions. Okay, so this is digital to analog converter. Now we will need a analog to why we require these two things? Because before doing a digital instrument, these two are important parameter, important devices actually. Within that you have to use them. बिना इनके यूज किए आप अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका इनपुट आपका एनालॉग है, तो उसके अंदर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होना ही चाहिए. और जब आप उसको स्क्रीन पे शो करना चाहते हो तो अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू एनालॉग, तो अगेन यू हैव टू डू दैट. तो एनालॉग कन्वर्जन के लिए तो हमने यहाँ देख लिया, दैट इज सिंपल. बट डिजिटल टू एनालॉग, सॉरी एनालॉग टू डिजिटल इज मोर डिफिकल्ट टू डू द conversion. So that is why we have this kind of first we'll see the diagram what is happening here. This is analog input. Okay, so this is some kind of sine wave है, but sine wave भी नहीं है, सब कुछ ऊपर ही है, all are in the same polarity. So some kind of signal is there. So what we do,
you have to convert into digital form. Means आपको इसको सेव भी करना है और आपको स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको डिजिटाइज करना पड़ेगा. डिजिटाइज मीन्स you have to just number in a digital format to these different value. So what you do, you just decide yourself that what should be the width. Means मैं किस time पे signal को change करूँगा. That is your decision. कि आपने इस जो सिग्नल है मीन्स 1 सेकेंड में जो भी सिग्नल मैंने जनरेट हुआ है, आप इसको 16 बिट में स्टोर करना चाहते हो, 32 बिट में करना चाहते हो या कितने बिट में करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू. जितने बिट्स में करोगे उतने ही कम टाइम पे आप इसको चेक कर पाओगे. क्योंकि अगर आप इफ यू इमेजिन कि लेट अस से कि मेरे को 1 बिट में ही करना है, मैं इसको 2 ही बिट में करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा या तो 0 या तो 1, तो व्हाट आई कैन सी, all the things will be divided into two parts. Anything, any voltage which is more than this value, I will call it as 1. Anything which is less than this value, I will call it as 0. तो मेरा जो यहाँ पे सिग्नल दिखेगा, वो सिग्नल कैसा दिखेगा? ऐसा नहीं दिखेगा. That signal will be something like this one. इस लॉजिक को मैं 0 कह रहा हूँ, या जिसको भी मैंने 0 का और इसको मैंने 1 का, तो मैंने डिफाइन कर दिया अपने अकॉर्डिंग. I will see something like this one. If it is more value, then it will just show a line. If it is less, it will just show a bottom line. तो एक स्टेट का डिवीजन दिखा देगा कि भी 2 लेवल पे डिवाइड हो रहा है. If I use only 2 bits. If I go further more bits, then what I can do, even I can divide this line into different part. Because ये part भी different होगा, मेरे लिए ये part भी different होगा, because इनकी numbering मैं different कर रहा हूँ. It is more than this, so I can do that. Even if you more increase the bits, you can do this also. You can measure these values also. And you can easily see that when you retrace, means reconstruction of the signal, as many dots you have, means how many bits you have used to convert your signal will replicate yourself. It means whatever the signal it has. तो input जो आपने दिया था उसी को replicate करेगा. अभी भी ये replicate नहीं कर रहा. There is a line. तो अगर स्क्रीन पे आप देखोगे तो it will be something like, it will connect like this one. So we need further more point to get all this information about this analog signal. So what we are doing, हमने सिग्नल दिया, बिट्स पे डिसाइड होगा कि कितने बिट्स आपने रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्जन करेगा और उसको स्टोर करेगा और फिर उसको रिट्रेस करेगा. यहाँ पे तो हमने पॉइंट्स इतने लिए कि ये रिट्रेस होने में दिख रहा है कि यस इट इज लुकिंग लाइक दैट, बट आई हैव गिवन यू द एग्जांपल आल्सो. इफ यू टेक ओनली 2 बिट्स मींस 0 and 1, then all this number has to be 1 and all this number has to be 0. You can even imagine in this way, anything which is greater than this value, I will call it as 1. Anything which is less than this value, I will call it as 0. So this signal will look like this one. That's all. Yes, something is there, but you don't know what is that. Everything has been converted into the flat information. तो आपके लिए हो गया 1, यानी 1 है नंबर. बस आपके इंफॉर्मेशन में जो स्टोर हुआ, आपने बहुत कम स्पेस यूज किया, बट स्पेस आपने अगर कम रखा तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी सिर्फ पूरे सिग्नल को उसने बोला कि इट इज 1, इट इज मोर देन सर्टेन वैल्यू. So we have to check, means we have to have more steps. जब तक ज्यादा steps नहीं होंगे, you cannot resolve in a better way. Okay, so how we do the conversion? There is a different kind of conversion, simultaneous conversion. As the signal appear, it do the conversion very fast. We will discuss brief idea of AD conversion. Okay, for this case. Counter method, slow conversion, we will not discuss. Continuous AD converter, very fast, we will not discuss. मैंने लिख भी दिया है. Successive approximation, we will not. फिर discuss क्या करना है? इन तीनों को ही लिख दिया. We will not discuss. तो मैं discuss क्या कर रहा हूँ? अच्छा नीचे वाला कर रहा हूँ. Okay. और ऊपर वाला रह गया ना simultaneous conversion. हाँ ये वाला तो यही है. ये वाला डिस्कस करेंगे. दिस इज अ वेरी बेसिक कन्वर्जन. तो साइमल्टेनियस हम करेंगे, दिस वी विल डू. बट ये थोड़े से और ट्रिकी हो जाते हैं. मतलब काउंटर यूज करते हैं इसमें, अप काउंटिंग डाउन काउंटिंग दोनों होती है. फिर कंटिन्यूअस भी है एक, उसमें भी आपका काउंटर यूज होता है. तो काउंटर वाला पार्ट शायद मैंने छोड़ दिया है. मतलब काउंटर जो सिर्फ काउंटर यूज करके हम कन्वर्जन करते हैं, तो वो हमने पार्ट छोड़ दिया शायद हमने.
ठीक है. So this I will discuss, which is exam में ये आ जाते हैं, dual slope on single ramp AD converter. So this is something like a op-amp. It is op-amp we are using in this particular case. So single ramp है, there is only one ramp, and there is a dual slope also. So these two we will discuss in detail because they are used in digital voltmeter. Okay, so they are used in the digital voltmeter. तो voltmeter में जो circuit में बना होता है वो actually ये दोनों use होते हैं. And they are not fast but simpler to implement, more economical way. मतलब simpler है to implement and it is more economical. इसीलिए 700-800 रुपए में हमें मिल जाता है एक voltmeter. Because you require a chip, that is operational amplifier chip, that's all. And you need certain more things like AD converter भी हमारा chip के form में आ जाता है, DA converter भी हमारा chip, सब कुछ chip के form में आ जाता है आजकल. So let us do the simultaneous conversion. There's a very simple circuit. सर्किट रेप्लिकेटेड है, ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल सा सर्किट है. आई विल गो बाय दिस पार्ट ओनली. सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. दिस इज एनालॉग इनपुट एंड कन्वर्टिंग इनटू अ डिजिटल फॉर्म. सो देयर इज अ डिजिटल नंबर. तो 3 बिट एक आउटपुट है हमारे पास, यानी हमारे पास नंबर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वी कैन हैव दीज पॉसिबिलिटीज 2 1 1. दिस इज ओनली द पॉसिबल. तो 8 डिफरेंट स्टेप्स हमारे पास जनरेट हो सकते हैं, दैट्स ऑल. वी कैन नॉट हैव मोर देन दैट because it is 3 bit. And there is a read gate. Read gate means when you want to read, you just apply the enable signal and the things will be converted. If you don't want to do, you just make it 0 and it will not read. So इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है. जैसे AND गेट, AND गेट में जब आप एक इनपुट तो आपके पीछे से आ रहे हैं, ये 3 इनपुट है ना, तो 3 AND गेट लगे हुए हैं. AND गेट का पर्पस क्या होता है? If any signal is 0, then nothing will be there. You will get 0 even though other inputs are high. AND गेट का सिंपल है. OR गेट का क्या है? If anything is high, you will get high value. AND गेट का क्या है? If anything is any one input is 0, you will get 0. बेशक से आपने ऐसे याद किया हो कि 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, सॉरी 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है और 1 1 1 होता है. हो सकता है आपने ऐसे याद किया, बट बेटर वे याद करने का तरीका है AND गेट का. इफ यू हैव मल्टीपल इनपुट्स. हाँ कैसे किया? स्टेटमेंट से किया सर. हाँ टेबल के फॉर्म में किया ना. स्टेटमेंट सर, जैसे आपने भी बोला था वो भी. हाँ तो स्टेटमेंट इज बेटर. इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो. आपको बाकी इनपुट देखने की जरूरत ही नहीं है. इफ और गेट में क्या? इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, या आउटपुट इज हाई, तो दैट्स ऑल. बाकी अगर 0 है 1 है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. एक भी हो गया तो दैट इज ओके. तो दिस इज समथिंग यूज्ड एज अ रीड गेट. तो आपको जब इसको क्या करते हो, एक आप AND गेट है, एक तो आपने सिग्नल से कनेक्ट किया, एक को आपने हाई से कनेक्ट, या जिसको 0 and 1 खुद से कर सकते हो. यू कैन मेक दैट particular thing. या ये सारे आपस में connected होंगे. This will go to here and then you have another which is here and this will go to this one. So you can make it 0. जैसे आप 0 करते हो, it is not going to give you any output. If it is 1, it is going to do the conversion. तो आपको कब conversion करना है, कब नहीं करना है, that is your decision. तो इसके लिए आप क्या करते हो? आप चाहो तो क्लॉक लगा लो या एक माइक्रो कंट्रोल लगा, यानी ये यू कैन मेक अ स्विच. स्विच आपने ऑन किया तो कन्वर्जन होगा, नहीं ऑन किया तो कन्वर्जन नहीं होगा. So this is what the simple, within this box, this is a circuit. Then further back, अब ये वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज एक्चुअली डिसाइडिंग कि आपका वोल्टेज किस लेवल पे है और उसको क्या नंबर असाइन करना है. ठीक है, आपका वोल्टेज किस लेवल पे है और किस नंबर को हमें असाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर सिग्नल इज 0 to 5 वोल्ट, एक साइन वेव है, 0 to 5 है, -5 नहीं है, 0 to 5 है और इट इज अ साइन वेव. So what you want to do, you want to divide this signal into 8 parts. ठीक है, 8 पार्ट में जब डिवाइड करो तो आपको छोटे छोटे जो सेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं, उन सभी सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो. इनके पिन पॉइंट की भी ये जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट है उसको मैं 0 0 0 का नाम दूंगा, जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको मैं 1 1 1 का नाम दूंगा. I want to do this. This is what I want to do, and relatively all the other values wherever your point is. So obviously you are missing something. आप इसको और बिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट इफ यू आर गोइंग इनटू 8 बिट्स तो 0 and 5 यानी मेरा सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मैं मेजर कर सकता हूँ
5 means you just divide this number. तो अभी मैंने डिवाइड किया था ना कहीं 5 to the power of 3, so that is how much? 5 divided by 8. कितना होगा ये नंबर? 0.65. ऊपर मैंने टेबल भी बनाया था शायद, ये ना वही है ना ये टेबल. हाँ, 65, 1.2, 1.8, 2.5, 3.1, 3.7, 4.3. This is what you are going to get. So anything which is less than this value means 0.5 volt, 0.4 volt, 0.3 volt, point this volt, point that volt, all those values within this range should be called as zero. Digital में मैं उसे सिर्फ zero कह दूंगा. Anything, any voltage, because मेरे पास तो एनालॉग इनपुट है, वो तो कंटिन्यूस इनपुट है, उसमें तो सारी वैल्यूज आ रही हैं. अब दूसरा स्टेप क्या होगा? Any value between these two value will be called as this value. Similarly, we go on. So any value between these two means 3.75 से बड़ा और 4.37 से छोटा. Anything will be called as 550. यानी that is sixth, you can say, place or sixth particular division. Anything which is greater than this, यानी 4.375 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसको मैं हाईएस्ट नंबर असाइन करूंगा. दिस इज व्हाट माय वे ऑफ कन्वर्टिंग दिस. अब मुझे इसको बैक करना है. अभी तो मैं इधर से इधर कर रहा था, अब मैं इसको बैक करना चाहता हूँ. यानी जब ये नंबर अपीयर हो या उससे बड़ा नंबर अपीयर हो, बस इससे छोटा नंबर आ रहा है, तो आई विल राइट माय नंबर एज 005. तो दिस इज क्लियर. डिजिटल टू एनालॉग में हम ये कन्वर्जन कर रहे थे, ठीक है, और एनालॉग टू डिजिटल में हमें ये कन्वर्जन करना है. हमें नंबर गिवन है एंड वी हैव टू मेक द डिजिटल काउंटिंग. हमें काउंटिंग अरेंज करनी है. इज इट क्लियर? यस सर. तो अब सर्किट पे हम जाते हैं. तो सर्किट पे भी यही सारे नंबर हैं, बट वो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं, वो किसी एक रेशियो में लिखे हुए हैं. दिस इज व्हाट. तो 5/8 हमारा 0.6 ये वाला आ गया वैल्यू. दिस इज 625 एंड दिस इज 4.375. ऐसी बाकी नंबर है, ठीक है. यू कैन इजीली डू द कैलकुलेशन. इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सिंपल है. 2.5 ये मैं लिख सकता हूँ. 5/2 that will be 2.5. Okay, so when the signal appear, आपका जो सिग्नल यहाँ पे अपीयर हो रहा है, जो आपके सभी से कनेक्टेड हो, ये जो सारे ट्रायंगल है ना, इनको हम कंपैरेटर कहते हैं. मींस ये समटाइम इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, ग्रेटर देन. इसके अंदर का सिंबल ये होता है. तो विच, इसके दो इनपुट है, तो विच एवर इनपुट इज हायर, your comparator will saturate according to that. For example, अब कंपैरेटर में यहाँ पे हम नॉर्मली उस पर फोकस नहीं करते हैं कि वो प्लस पे लगा कि माइनस पे लगा, बट व्हाट वी कैन डू प्लस माइनस. इसके दो इनपुट्स होते हैं, प्लस माइनस एंड सो ऑन. तो एक बार जरा इसका लॉजिक समझते हैं कि वर्क कैसे करता है. इसका वर्क बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको ध्यान नहीं करना है. इसके दो इनपुट भी हैं जिसको हम ऑपरेटिंग वोल्टेज कहते हैं. तो ये VCC और इसको VEE कहते हैं. तो सभी के पास दो इनपुट है. ये नॉर्मली आपका या तो 5 वोल्ट होता है या 15 वोल्ट होता है. तो हम 5 अज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 वोल्ट प्लस है और ये 5 वोल्ट माइनस होता है, ठीक है. जैसे ओपन में हम इनपुट देते हैं. तो देयर आर 2 टर्मिनल्स. ये टर्मिनल यहाँ नहीं बने हुए हैं बिकॉज इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज वंस यू नो द लॉजिक ये वर्क कैसे कर रहा है, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि व्हाट द थिंग्स इज हैपनिंग. तो इस कोडिंग नेटवर्क से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. तो इसका पर्पस क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल पे मेरा ये इनपुट है लगा हुआ और पॉजिटिव पे मेरा इनपुट चेंज हो रहा है बिकॉज वो साइन वेव लगा हुआ है. तो व्हेनेवर दिस इनपुट is greater than this negative, the output will be saturated at positive polarity. ये जो +5 लिखा था, ये +5 है, ये -5. तो अगर प्लस वाले टर्मिनल पे जो वोल्टेज आ रहा है, if it is greater than this, the output will be 5 volt. That's all. If this number is greater than this terminal value, means इस पॉजिटिव पे जो भी आपने वोल्टेज लगाया और ये एक दूसरा वोल्टेज है, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू जो आपका अपीयर हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो देयर आउटपुट इज -5. दिस इज व्हाट द कंपैरेटर डू.
कंपैरेटर इस वोल्टेज को नहीं आउटपुट पे देता है, इस वोल्टेज से उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो कंपेयर करेगा। पॉजिटिव वाला हाई है तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, नेगेटिव वाला हाई है तो नेगेटिव आउटपुट आएगा और सैचुरेटेड वैल्यू आएगी, जिसको हम वीसीसी या वीई कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो सिंपल है, इट हैज टू कंपेयर, जो बड़ा है उसी का सैचुरेशन आगे मुझे भेजना है। सैचुरेशन मींस इट विल सेंड दिस वैल्यू, इट विल नॉट सेंड 4.375, वो आगे उसको नहीं भेजेगा, इट विल जस्ट सैचुरेट। सैचुरेट मींस व्हाटएवर द ऑपरेटिंग वोल्टेज यू हैव अप्लाइड, इट विल सैचुरेट टू दैट वैल्यू। पॉजिटिव वाला ज्यादा है तो पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव वाला ज्यादा है तो नेगेटिव आउटपुट। तो दिस नंबर इज लेस देन 0, तो डिजिटल के लिए ये नंबर 0 लॉजिक है और ये नंबर 1 लॉजिक है। ठीक है, डिजिटल के लिए नंबर 0 लॉजिक का है और +5 आपका लॉजिक 1 का है। इज इट क्लियर? It means whenever the output is at the highest value or more than that, यानी 5 वोल्ट है ना, तो 5 यानी 4.37 से भी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो जब 4.37 से ऊपर जाएगा तो जो भी वोल्टेज जिस टाइम पे ऊपर रहेगा उस टाइम पे ये वाला C7 मेरा आउटपुट हाई रहेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। बिकॉज इफ यू कंपेयर दीज, सॉरी, बाकी सारे भी हाई होने चाहिए। यस, बिकॉज इट इज हियर इट इज मोर देन दिस वैल्यू, दिस इज ऑलवेज लेस देन दिस, सो ऑल आर हाई, तो सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। अगर आप यहाँ एलईडी लगाओगे तो एलईडी विल अपीयर ऑन ऑल दीज कंपैरेटर। बट व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप्स लेस देन दिस वैल्यू, बिकॉज ये तो साइन वेव है तो वोल्टेज फिर ड्रॉप भी होगा, तो ड्रॉप होगा तो 4.73 से नीचे आएगा तो दिस एलईडी इज ऑफ, all are on. Then this LED is off, all are on. This is off, all are on, and so on. Is it clear? This part is clear? यस सर। ये फंक्शन No, कैसे sir. कर रहा है? नो, क्यों? देखो, ये सभी के टर्मिनल एक एक कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ना, Yes, sir. and they are connected with positive terminals only. ठीक है? And all the negatives are connected by certain numbers. ये 2.5 है, ये 4.37 है, ये 4.37 है या कितना है? Let me just check. 4.3। हाँ, 375 है, ठीक है। And this is 3.7, मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, 375, and this is 3.125, and this must be 2.3, 1.8 and 1.25, तो ये 1.8 है और 875 है और ये 1.2 है। ठीक है, तो मैंने सारे नंबर लिख दिए। ठीक है, कंपैरेटर का फंक्शन क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। This is V1, this is V2, and there is a VCC, and there is a VEE. This is negative, this is always positive, and this is the output. C7 लिख देते हैं इसको, ये कंपैरेटर का आउटपुट C7 में है, C लिख देते हैं। ठीक है, okay, so what is C? C will be equal to plus VCC if V1 is greater than V2. It will be minus VEE if V2 is greater than V1. This is what you have to remember. ठीक है, पॉजिटिव Yes. टर्मिनल का इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट ये आएगा, नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट सॉरी, ये नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट ज्यादा है V1 से तो दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, Yes. is it okay? And normally this number is either 5 or 15, हम 5 अज्यूम कर लेते हैं, ये +5 है और ये नंबर आपका -5। तो एज पर डिजिटल लॉजिक दिस इज 1 and this is logic, क्या होगा इसका लॉजिक? लेस देन 0, so this will be 0. Anything less than 0 is 0. वैसे तो एग्जैक्टली हम 0 पे नहीं डिफाइन करते हैं, 0 से कुछ रेंज होता है,
or even 5 is not, even 2.5 volt is also called as 1 logic. तो डिपेंड करता है आईसी टू आईसी, तो किस रेंज को 1 लॉजिक ले रहा है, किस रेंज को 0, बट ऑब्वियसली 0 से कम है तो इट इज 0 लॉजिक. रिवर्स बायस है ना, तो रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होगा तो इट इज 0 लॉजिक. इफ इट इज मोर इट इज 1. यहाँ क्लियर है? यहाँ क्लियर है? Yes. Yes, sir. So now what the input is at this point? It is an analog input. अज्यूम करते हैं कि हम 0 वाला नहीं, हमने इसको स्टेप अप कर दिया है और 0 मेरा ये है और ये मेरा 5 वोल्ट है, तो मैं 0 से 5 वोल्ट का एक वेरिएशन यहाँ पे पास कर रहा हूँ. तो ये तो कंटिन्यूअस है ना, ये तो चेंज होता रहेगा, इट विल गो ऑन चेंजिंग. ये तो फिक्स नहीं है ना किसी पॉइंट पे, इसका नंबर तो चेंज होता रहेगा ना रेगुलरली. साइन वेव है Yes, sir. तो एक टाइम के साथ चेंज होता रहेगा. इज इट सो? जिस बच्चे ने डाउट Yes, पूछा sir. था. Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है. अब जब ये चेंज होगा कंटिन्यूअसली, तो either sometime it will be more than this or less than this, sometime more than this, less than this, whatever. It will get compared with these values. होगा या नहीं होगा? क्योंकि तो continuously appear हो रहा है ना. It is simultaneously appearing at every point. If it is appearing simultaneously, तो किसी टाइम पे इस कंपैरेटर के लिए लॉजिक चेंज होगा, किसी टाइम पे इसके लिए चेंज होगा, किसी टाइम पे इसके लिए चेंज होगा. तो लेट अस गो कि हम 5 वोल्ट पे अभी हैं. जब इनपुट आया ना तो 5 वोल्ट पे फिक्स्ड है अभी, मतलब ये चेंज हो रहा है बट हम अभी ये इनपुट 5 वोल्ट है. तो 5 वोल्ट जब इनपुट अगर होगा ये फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज ग्रेटर देन दिस नंबर. Yes. yes yes. तो दिस इज 1. आउटपुट विल बी +5. मैंने +5 लिखा था बट लॉजिक सेंस में लिखते हैं दिस इज 1. इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस वन, ऑब्वियसली. तो दिस इज 1. It is also greater than this one. So all the LED, if you connect at this comparator, 7 LEDs आपको दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7. All the 7 LEDs on. So all the LEDs are on. ठीक है. अब ये Yes. तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू डिक्रीज भी होगी, या यहाँ से अगर देखते तो इंक्रीज होती है, यहाँ से देखें तो डिक्रीज हो रही है. तो इट कैन 5 से लेकर के 4.371 तक भी रहेगा, तो सारे एलईडी ऑन होंगे. वंस इट बिकम इक्वल टू, तो बहुत एग्जैक्टली नहीं होता है, बट इट विल डू गो, वंस इट इज बिलो दैट, इक्वल टू में भी वो हायर को दिखाएगा. जैसे ही वो लेस देन हो गया, यानी 4.374 हो जाएगा वोल्टेज, देन व्हाट विल हैपन, दिस एलईडी इज ऑफ. अब ये आउटपुट -5 होगा, तो -5 पे एलईडी ऑन नहीं होगा, एलईडी को आपको हाई वोल्टेज देना पड़ेगा तब ऑन होगा. तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, लेकिन बट स्टिल this number 4.374 is greater than all these numbers, then all are on. तो ये धीरे धीरे नीचे भी आएगा, वोल्टेज 0 पे भी आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ एलईडी ऑफ होंगे, कुछ एलईडी ऑन होंगी. यहाँ तक क्लियर है? देन आई विल शो यू द ट्रुथ टेबल. जब यहाँ तक क्लियर है उसके बाद ही हम ट्रुथ टेबल पर जाएंगे. Yes, sir. Clear. ठीक है. अभी हम कोडिंग नेटवर्क पे भी नहीं आए हैं, अभी कोडिंग नेटवर्क पे आने की जरूरत नहीं है. अभी हम देखेंगे कोडिंग नेटवर्क क्या है, बिकॉज we have 7 things and these 7 things has to be converted into only 3 things. तो वो 7 से 3 में आने या 8 different steps को 3 में convert करने के लिए क्या steps होगा, that is being implemented here. So this is the truth table. There are inputs and there are different outputs. So there are 7 outputs. When the voltage is between this, which I have told you कि 5 volt या उससे कम या इससे ज्यादा है, तो all are high. And as the voltage decreases to 0, low, and finally all are low. जब 0 यानी सबसे लास्ट कंपैरेटर में भी
इस वैल्यू से नीचे चली गई वोल्टेज, यानी 0.625 से नीचे चला गया तो ऑल आर ऑफ, ऑल आर लो। ये ट्रुथ टेबल क्लियर है? यस सर। यस, ठीक। अब इस ट्रुथ टेबल को यूज करके यू कैन मेक अ सर्किट डायग्राम, मींस कन्वर्जन ऑफ योर ट्रुथ टेबल इनटू अ डिजिटल सर्किट टू इंप्लीमेंट दैट। तो फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं लॉजिकल जो हमारे पास जो ये है, ये वाला पॉइंट है कोडिंग नेटवर्क। इस कोडिंग नेटवर्क का पार्ट होता है क्या? मैंने लिखा भी एंड और गेट का कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं। दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल एंड वी विल डू द थिंग्स। कैसे होगा? 2 to the power of 0 कब कब ऑन होगा? मैं टेबल पे लिख देता हूँ, टेबल लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेक दिस वन बिकॉज यू हैव टू राइट दिस नंबर ना। अल्टीमेटली इतने सारे एलईडीज ऑन ऑफ हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, बट फाइनली आपको इन सारे 7 तो यहाँ दिख रहे हैं, बट एक 8 है जो 0 है, तो 8 डिफरेंट स्टेप्स को आपको 3 डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। ये हमारे लिखने का एक तरीका है कि भाई बाइनरी में हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 स्टेप्स हैं उसको 3 स्टेप्स में मेंशन कर सकते हैं, दैट इज ओके इफ ऑल द 8 स्टेप इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो 2 to the power of 0 यानी जो एलईडी आपकी 2 to the power of 0 के लिए लगी होगी वो कब कब ऑन होनी चाहिए? 4 टाइम्स, है ना? 4 टाइम्स ऑन होनी चाहिए ना। तो 4 टाइम्स क्या Yes. है? नंबर को चेक करें, C7, ध्यान से देखना, मैं जिसको जिसको मार्क कर रहा हूं, मैंने ये मार्क किया और बाकी भी हम मार्क कर सकते हैं। अब हम जरा यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इस एक्सप्रेशन पे। वैसे एक्सप्रेशन बहुत इजीली निकल जाएगा, इट इज नथिंग बट एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना? इसको हम एसओपी कहते हैं और आपने क्लास में भी एसओपी पढ़ा होगा। तो you have inputs and according to that you make a circuit. So these are the, you can say this is output and these are the inputs. तो इस inputs के लिए मुझे ये कैसे सर्किट बनाना है? तो look at this one, C1 and C2 bar. Just look at C1. What is the status of C1? High, ये हमेशा ही हाई है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, यानी जब मेरे पास 2 to the power of 0 वाला जो एलईडी, जब मैं एलईडी यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, एक तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया था, फाइनली मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो मेरे पास एलईडी लगी हुई है इस पॉइंट पे, वो मेरे को कब ऑन दिखनी चाहिए? कब कब ऑन दिखनी चाहिए? जब मेरे पास C1 सारे हाई हैं तो ये ऑन होनी चाहिए, दैट इज ओके। बाकी हम स्टेट अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। C2 अगर 0, C1 अगर 0 है तो ये ऑफ होना चाहिए, दैट इज ओके। सो जब हाई है तो ये ऑन होना चाहिए, तो दिस इज हाई, नो बार इज देयर। लुक एट दिस वन, C2, 1 is low, rest is high. Sorry, not this one, this one. एक इसके पास लो है तो मुझे इसको हाई करना पड़ेगा so that this number is feasible. This number is feasible कि ये नंबर मेरा एक 1 या 0 देगा, बाकी तो नंबर भी है मेरे पास, बाकी भी फिट हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर ये नंबर भी 0 हो जाता है, ये नंबर हाई होता है, तो स्टिल मेरा आउटपुट मेरा हाई हो जाएगा। So just look at these numbers. You C3 को भी चेक कर लो, C4, C3 देखो कहाँ है? C3 is this one. This is high, this is low, this is high, this is high. Means what you have to see कि अगर मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ किसी टाइम पे, अगर ये 0 भी है तो दूसरा नंबर उस टाइम पे 1 होगा, या ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर 0 भी है तो ये 1 है, ये 1। तो you have to see कि ये वाला जो एलईडी जो मेरे 2 to the power of 0 पे लगा हुआ है, that should get on for these particular cases. For these particular cases, so you can make a means you can make आपने तो सिर्फ 4 बिट का बनाया होगा ना, आपने किसका बनाया होगा? 4 बिट का ट्रुथ टेबल, और उसका एक वाई आउटपुट होगा जिसके लिए आपने सर्किट बनाया होगा, यही क्या है ना?
आपने Yes, इससे ज्यादा 5 बिट का नहीं किया होगा। 5 बिट का ट्रूथ टेबल आपने जिसको सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको के मैप यूज करके या कैसे भी करके, जैसे भी आप करना चाहो। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव दीज नंबर्स ऑफ बिट्स, उनके स्टेट्स लिखे हुए हैं 0 1 0 1। यू कैन राइट, मैंने तो यहाँ लो हाई लिखा है, यू कैन राइट 1 0 0 0 1 एंड दीज आर द 3 आउटपुट्स। तो ये आपका एक y है जिसको y0 कह सकते हो, फिर y1 कह सकते हो, या y2 कह सकते हो। तो you have to write the expression for these kinds of entry for this particular y0. So you will get this kind of expression. तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है इस सर्किट को बनाना। कम टू द दिस वन, दिस पर्टिकुलर 2 to the power of 1, या पहले 2 to the power of 2 पे आते हैं। 2 to the power of 2 का क्या है? अच्छा नहीं, sorry, let me just see, I have written both, I have written 0, so this must be somewhere I'm wrong। मतलब मेरे को एक बार जरा ये वाला कन्वर्ट करने दो। C4 आपका क्या है? C4 is high, this one। So when it is high, it is directly, yes, this is 2 actually, this is 2, it is okay। तो जब भी C4 हाई है तो मेरा ये एलईडी ऑन होना चाहिए, जो 2 to the power of 4 वाला एलईडी। तो इसके लिए मुझे कोई ज्यादा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। Whenever C4 is high, you have to just connect the line to the LED, यानी C4 को आपको LED से कनेक्ट कर देना है। तो जब भी ये हाई होगा यहाँ पे आपको 1 शो करेगा, जब ये लो है तो ये आपको 0 शो कर रहा है। कम टू दिस वन, द सेकेंड वन, ये 2 बार यहाँ पे आ रहा है और 2 बार यहाँ पे आ रहा है। तो जरा चेक करते हैं। C2 is here, which is high and high। तो ये हाई है। C4 आपका कहाँ पे है? C4 आपके इन दो केसेस में लो पे चला जाता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट देम, तो इसको आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड इन दोनों पे हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन C6 आपका कहाँ पे? ये रहा। तो ये दोनों केसेस में आपका हाई है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे केस में अगर ये 0 भी होता है, मीन फॉर एग्जांपल इफ इट इज 0 बट अदर विल बी हाई, तो आपको रिजल्ट हाई दिखा देगा। सो दिस इज हाउ यू राइट दैट। आपको करना क्या है, 7 बिट्स का आपका टेबल है और ये तीनों आपके आउटपुट हैं, तो उसके लिए आपको सर्किट डिजाइन करना है। आपने 4 बिट का ही सर्किट डिजाइन किया, 7 बिट का नहीं किया। बट अगर के मैप नहीं भी करते हो, स्टिल यू कैन मेक, अच्छा 7 बिट तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आपने तो ऐसे किया होगा ना, ए बी बार ए बी बार एंड ए बी, और फिर उसके बाद आपने Yes, सी sir. डी बार सी डी एंड सी डी बार। तो bar, 8 yes, बिट में वर्क कर सकते हो ना। तो यस यू कैन डू। आप क्या करो, C1 और C2 को यहाँ यूज कर लो, और नहीं फिर भी नहीं होगा, दिस इज 8 बिट। तो यहाँ पे हम कितने बिट ले रहे हैं? अच्छा 4 ही बिट ले रहे हैं। यस आई हैव टू करेक्ट। यहाँ पे तो 4 ही बिट है ना, मैं तो उसका 7 बार बिट्स में स्टेट तो है। 7 होना चाहिए, 7 ऊपर भी 7 नीचे भी। हाँ नहीं, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। देन इट इज अ 3 डायमेंशनल, यू कैन नॉट गो इन दैट वे। फिर हमारा ये 4 बिट का होता है ना, तो 4 बिट का एक और होता है, उसको सुपर इम्पोज करते हैं इसी के ऊपर, जिसको नॉर्मली 5 बिट का कहते हैं। अगर मेरा ई वाला एक आ जाता है तो मैं इसी पर्टिकुलर टेबल में उस टेबल को सुपर इम्पोज करता हूँ, क्योंकि उस इन सारे के लिए 0 होगा और फिर इन सारे के लिए एक बार 1 हो जाएगा। दैट इज अ 5th बिट। तो इट इज मोर ट्रिकियर, बट यू कैन इजिली राइट दिस एक्सप्रेशन, यू कैन चेक दैट एक्सप्रेशन की भाई ये हमेशा हाई होना चाहिए इन पर्टिकुलर केसेस में। तो यू कैन इजिली चेक, किसी भी एक नंबर को हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस टाइम पे ये आना चाहिए हाई, तो इस टाइम पे मैं सारे स्टेट चेक कर लेता हूँ, है ना, ये हाई आना चाहिए ना। तो लेट अस चेक कि एक्सप्रेशन मेरा हाई आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। व्हेन आई एम फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इस टाइम पे एलईडी ऑन होना चाहिए, इस टाइम पे बाकी स्टेट को हम चेक करते हैं। C2 इज हाई, इट इज ओके। C4 क्या है? लो है, तो इसको मुझे इन्वर्ट कर दिया तो हाई हो गया। तो ये दोनों नंबर 1 1 मिलकर करके मुझे 1 तो दे देगा, और प्लस C6 अगर 0 है तो इट इज ओके, इट विल गिव मी 1, है ना। ये C2 मेरा हाई था। अगर मैं इसको सिर्फ इसको फोकस करता हूँ, लेट मी चेंज द कलर, so let us check any one expression because it will be difficult for you to make the, let us check this one again। इसको हम चेक करते हैं, सिर्फ किस पे फोकस किया है? 2 to the power of 1 वाला आपका ये वाला नंबर, इस टाइम पे बाकी स्टेट क्या है उसके अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को फॉलो करता हूँ। तो लेट अस चेक कि C2 की वैल्यू हाई है, C4 की Yes, वैल्यू sir. क्या है? C4 की वैल्यू क्या है? लो।
तो इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों नंबर मुझे मिलकर के क्या देंगे, C2 is 1 and 0 का बार and plus 0, so this will give me 1 because this is 1 and 1 plus 0 is 1, तो लॉजिकली OR गेट है तो ये 1 आ जाएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये 2 to the power of 0 है, लास्ट वाला ऑप्शन है, सारे ही नंबर हाई हैं, तो आई हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। इट मींस लेट अस राइट C1 क्या है, 1 है, C2 क्या है, हाई है, हाई है, तो इसको मुझे बार करना है, प्लस C3 क्या है, सारे ही 1 है, तो ये मुझे सॉरी ये 1 है ना, 1 का बार करना है, इसको भी 1 का बार करना है, फिर नेक्स्ट भी मेरा 1 है एंड 1 का बार है, और नेक्स्ट मेरा लास्ट वाला 1 है, तो ये सारे नंबर मेरे 0 दे रहे हैं, बट ये मुझे 1 दे रहा है, तो माय आउटपुट इज हाई, तो दिस एलईडी इज ऑन। So these three expressions are used to implement this particular network. The सातों के सातों connections, all the 7 pins as a input, and that will go to make these expressions. तो आपको क्या करना है, C1 का इनपुट लेना है और C2 के साथ एक नॉट गेट लगाना है और दोनों को एक एंड गेट में डालना है। C3 का इनपुट लेना है, C3 को एज ए इनपुट लेना है, फिर C4 के आगे नॉट लगाना है और फिर उसको एंड गेट में डालना है, फिर C5 C6 का नॉट उसको एंड गेट में, C7 एज इट इज टू और गेट। अब क्या करोगे, आपको 4 इनपुट और गेट चाहिए, तो चारों जो आपके ये एंड गेट थे उनका सभी का जो आउटपुट है वो एक और गेट में चला जाएगा, एंड दैट विल बी हियर। सिमिलरली फॉर अदर थिंग, इसमें आपको बाकी सारे से, इसमें तो सारे ही पिन आ गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 सारे पिन आ गए 2 to the power 0 के लिए, बिकॉज ये एक बार 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है, तो सारे ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट 2 to the power of 1 के लिए क्या किया हमने, C2 C4 और C6 का ही इनपुट लेना है बस, और 2 to the power of 2 के लिए हमें सिर्फ C4 का इनपुट लेना है, दैट्स ऑल, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। तो इट कैन बी इजिली, वहां पे कोई गेट लगाने की जरूरत नहीं है, C4 के इनपुट को खींच करके सीधा इस फ्लिप फ्लॉप पे कनेक्ट कर देना है, इट विल गिव यू द एलईडी आउटपुट। सो दिस इज व्हाट द कोडिंग, अब जो कोडिंग नेटवर्क है उसके अंदर ये वाला सर्किट बना होना चाहिए आपके पास, जिसमें ये सारे इनपुट्स हैं, you have and not and or गेट कॉम्बिनेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आज हम सिर्फ यही कंटिन्यूअस वाला ही कन्वर्जन, साइमल्टेनियस कन्वर्जन का ही देखते हैं। ये मैं जब शेयर कर दूंगा तो फिर से डिटेल में सर्किट बैठ करके देखना एक बार, कोडिंग नेटवर्क को चेक करना, कोडिंग नेटवर्क को चेक किससे करना है, इस ट्रूथ टेबल से चेक करना। दिस ट्रूथ टेबल इज हैविंग 7 इनपुट्स, नॉट ओनली 4 इनपुट्स, ये 4 बिट नहीं है, 7 बिट्स है, एंड दे आर गिविंग 3 आउटपुट। ठीक है, तो यू कैन इजिली चेक फॉर ऑल द एंट्री, यू कैन इजिली चेक, सारे एंट्री को चेक कर लेना कि कोई एंट्री गलत तो नहीं है, ऑल द एंट्री, ऑल द थिंग्स शुड गिव मी हाई, एंड जस्ट चेक कि भाई अगर मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, ये वो इन दोनों पे तो फोकस करने की जरूरत नहीं, मेन आपको इस वाले पॉइंट पे हर एक एंट्री को चेक कर लेना कि आउटपुट मेरा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इवन दूसरी एंट्री को भी चेक करना, 1 को तो चेक ही कर रहे हैं, इवन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दैट यू हैव टू चेक विद दिस, क्यों 0 भी आना चाहिए। ट्रूथ टेबल का मीनिंग है दैट शुड बी ट्रूथ, इट शुड नॉट बी करेक्ट फॉर सेवरल वैल्यूज, तो वो ट्रूथ टेबल नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा, और जो सिंगल रैंप है वो हम ओपन वाला नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, just go with this particular truth table and revise that, that's all what I can say। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड 4 बच्चे और छोड़ के चले गए बेचारे, उनको लगा पता नहीं क्या चल रहा है, तो now it is becoming 37 एंड अब ड्रॉप होगा, सिग्नल बड़ा फास्ट। So bye bye for now, and I will share some detail about the classes which is in doubt class, that is concerned on the Python, तो Python वाला और थोड़ा astrophysics मिला करके, तो I will share that। Okay, थैंक यू सर। thank you, and करते हैं मीटिंग अब, bye bye।